کچھ دیگر خبریں شامل کریں۔ رجسٹر فری لانسرز کے لیے ٹیکس زیرو کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ افراد کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ کہا ذرا سی آسانی پیدا کرنے سے 2 سال میں آئی ٹی برآمدات 2 ارب سے بڑھ کر 4 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹوں کو ہٹاتی رہے گی تاکہ ٹیکنالوجی کے انقلاب سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کے سامنے جو جتنی رکاوٹیں انشاءاللہ ہٹاتے جائیں گے تاکہ ہم اپنے یوتھ کو پورا موقع دیں، فیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ جو اب ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو جو میں ایک سب سے پہلے تو آج آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رجسٹرڈ فری لانسرز کے لیے اب ہم نے زیرو ٹیکس کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو بھی نہ گھبرانے کا مشورہ دے دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ایک جملہ سب سے زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ حکومت میں آئے تو معاشی حالات بہت خراب تھے، اندازہ تھا کہ مشکل حالات سے گزریں گے۔ میں اپنی کابینہ کو کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، آج اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں۔ سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے، سب کو پتا ہے کہ ملک بینکرپٹ تھا، تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے جب گزریں گے تو مجھے اپنی ٹیم کی فکر تھی۔ جب ہم اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ۔ تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ، اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ۔ عمران خان کو کھلا میدان نہیں دیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ کہا 27 فروری کو نکلنے والا لانگ مارچ 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا اور ہم اپنے مطالبات رکھیں گے۔ جیالے رہنما نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت نہیں جو عدلیہ، پارلیمان اور پی ٹی وی پر حملہ کرے یا کسی ادارے کو کہے کہ اس حکومت کو نکالو۔ غیر جمہوری حکومت ہی صحیح مگر ہم اسے نکالنے کے لیے جمہوری طریقہ کار اپنائیں گے۔ اس کو سلیکٹڈ پہلے دن سے قرار دے دیا تھا۔ اتنا ڈر گیا آپ کا کپتان، آج تک وہ تقریر نہیں بول سکا۔ ایک تقریر کا مار کپتان عمران خان، جس نے تبدیلی کا وعدہ کیا، ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا، دھوکا نکلا۔ یو ٹرن پہ یو ٹرن لیا۔ ہم عمران کو کھلا میدان نہیں دیں گے، ہم ڈٹ کا مقابلہ کریں گے۔ لانگ مارچ ہوگا۔ ہم وہ جماعت تو نہیں ہے جو جا کے عدلیہ پہ حملہ کرے اور ان کو کہے کہ آپ اس کو نکالیں۔ ہم وہ جماعت بھی نہیں ہے جو کسی دوسرے ادارے کے سامنے کہے بھائی آپ آئے آپ اس کو نکالیں۔ ہم تو وہ جماعت نہیں ہے جو پی ٹی وی پہ حملہ کر سکے یا پارلیمان پہ حملہ کر سکے۔ ہم تو جمہوری جماعت ہے، تو جمہوری جماعت کے لیے غیر جمہوری حکومت سے، لیکن ان کو ہٹانے کے لیے ہم صرف جمہوری ہتھیار استعمال کر سکتے۔ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، 8 مارچ کو ہم اسلام آباد میں ملیں گے، مل کے ملک اور قوم کے سامنے ہمارا مطالبات بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی حملہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ دہشت گرد پہلے قوم سے معافی مانگے پھر حکومت ان سے بات کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا جو بھی مذاکرات کیے جا رہے ہیں اس پر عوام کو اعتماد میں لیا جائے، پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے۔ صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردوں کے سامنے جھکے ہیں، یہ بہت دس از اے ویری ریگریٹیبل اسٹیپ۔ ہم اتنا آسانی سے اپنے شہداء کی خون پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں
तो इनसे अगर आपने बात करना है, दहशत गर्दों को आपने इंगेज करना है, तो सबसे पहले आप इस मुल्क के अवाम से इजाज़त मांगो, पार्लियामान से इजाज़त मांगो। जो भी बातें आपने की है हमारे इजाज़त के बगैर है, पार्लियामान के इजाज़त के बगैर है, इसमें कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और अगर बात होना है, उनके भी पता नहीं क्या क्या मुतालबात होंगे, हमारा भी मुतालबात होंगे, और सबसे पहले हमारा मुतालबात ये होना चाहिए कि वो माफ़ी मांगे उस सारे जो दहशतगर्दी के वाक़ये हुए। हुकूमत को किस तरह गिराना है, क्या दाव पेज आजमाने हैं। अपोजिशन के दो बड़े आज इस्लामाबाद में बैठक लगा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी इशाइये पर मौलाना फजलुर रहमान के घर जाएंगे। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर होगी गुफ्तगू। PDM सरबराह और मुफाहमत के बादशाह अपने अपने तरकश के तीरों का निशाना तय करेंगे। तो अहम मुलाकात हो रही है, किसको किस तरह से गिराना है, हुकूमत को किस तरह से गिराना है, क्या दाव पेज आजमाने हैं। अपोजिशन के दो बड़े आज इस्लामाबाद में बैठक लगाने वाले हैं। आसिफ अली जरदारी इशाइये पर फजलुर रहमान के घर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात तय हो गई है। अहम खबर है कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने बिलावल हाउस लाहौर जाएंगे। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ समा लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम साहब, इस खबर की डिटेल भी दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आसिफ जरदारी साहब मौलाना साहब से मिल रहे हैं, आज शहबाज शरीफ मौलाना साहब से मिल चुके हैं। ये अलग अलग मुलाकातें क्यों हो रही हैं? जब एजेंडा एक है तो फिर एक साथ मिलके क्यों नहीं बैठ रहे? ये बिल्कुल जो ये भी एक प्लानिंग है जो पीपल्स पार्टी की, नून लीग की और मौलाना फजलुर रहमान की। अदरवाइज जो है अब अदम एतमाद के हवाले से PDM और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ चुके हैं, ये इतलात मौसूल हो रही हैं। और आज मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात के बाद कल की जो मुलाकात है शहबाज शरीफ और नून लीगी वफद की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से, ये बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है ये मुलाकात। और कल की मुलाकात में कोई अहम ऐलान भी मुतवक्को है, और ये ऐलान इस तरह का भी हो सकता है कि पहले किस ईवान में और किस तारीख को जो है अदम एतमाद लाई जाएगी, इस हवाले से कल का जो है वो एजेंडा है। जबकि आज मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात है उसमें भी अदम एतमाद की तारीख का तयन करने के लिए जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। कल शहबाज शरीफ के अलावा नून लीग की वफद भी जो है उनके हमरा बिलावल हाउस जाएगा, जहां इशाया दिया जाएगा। और ये रवां माह के दौरान आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की दूसरी मुलाकात है। अब देखते हैं कि कल PDM अपना कौन सा पत्ता शो करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। तज्जियाकार मोहसिन बेग की FIA के खिलाफ शिकायतें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर साइबर क्राइम को शोकॉज जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि TV शो पर पीका कानून कैसे लागू हो गया। किताब का हवाला देना, फहश बात कैसे हो गई, सबसे बड़ी फहाशी आइन का एहतराम ना करना है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत केस को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की क्लासिक मिसाल करार दे दिया। FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम शॉर्ट नोटिस पर तलब बाबर बख्त किसी सवाल का जवाब न दे सके और तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस ले बैठे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, शिकायत वजीर की थी इसलिए आपने सब ज़ाब्ते छोड़ दिए। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? FIA का काम किसी की जाती साख की हिफाजत करना नहीं। सेक्शन 21D लगाकर आपने शिकायत कुनिंदा और खुद को भी शर्मिंदा किया। FIA को बदमाश एजेंसी नहीं बनने देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बार बार फहाशी का तज़किरा किया तो चीफ जस्टिस बोले, किताब का हवाला देने में फहश बात कैसे हो गई? सबसे बड़ी फहाशी तो आइन का एहतराम न करना, इजहार राय पर पाबंदी लगाना और इख्तियार का गलत इस्तेमाल है। अदालत ने हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल 24 फरवरी को पेश होकर बताएं क्यों न पीका एक्ट की सेक्शन 21D को खत्म ही कर दिया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने FIA के कंडक्ट पर सवालात उठाए तो मोहसिन बेग के तर्ज अमल पर भी रिमार्क्स दिए कि अगर मेरे घर भी FIA से कोई आए साथ चलने का कहे तो मज़ाहमत नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि मोहसिन बेग के खिलाफ पुलिस मुकदमात पर अभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते, ट्रायल कोर्ट पर एतमाद किया जाए। वकील लतीफ खोसा ने दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की तो अदालत ने मामला निपटा दिया। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तब्दीली का नारा लगाने वालों, पहले कानून पढ़ लो। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का मशवरा। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर कहा, यह काला कानून जमाबंदी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। कौम को जहनी ग़ुलाम बनाने के लिए तरामीम लाई गई हैं। कोई भी इदारा जो हुकूमत ने बनाया उस पर तनकीद काबिल सज़ा जुर्म बना दिया गया है। फेक न्यूज़ या इल्ज़ाम की कोई तारीफ़ मौजूद ही नहीं। तरामीम इसलिए लाई गई हैं क्योंकि इमरान खान को तनकीद बर्दाश्त नहीं।
वो कानून जो आज़ादी इजहार राय को तकवीत देता है, ये उसकी खिलाफ वर्जी। अगर आप किसी पे तनकीद करेंगे और वो किसी इमरान खान साहब हैं और उनकी नालायक और नाअहल हुकूमत है, कोई भी अदारा गवर्नमेंट के ज़मरे में आता है या हुकूमत ने बनाया है, तो उसके ऊपर तनकीद करना जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है। इस काले ड्रकोनियन कानून के अंदर जो फेक न्यूज़ की डेफिनेशन है या फेक इल्ज़ाम की डेफिनेशन है, उसकी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। ये अमेंडमेंट इसलिए आई है कि इमरान खान साहब को तनकीद ना कबूल है ना मंजूर है। एक तरफ मुल्क में ख़वातीन का आलमी दिन अपने अपने तरीके से मनाने की गूंज, तो दूसरी जानिब मुल्क में कौम की बेटियों का जैसे कोई पुरसाने हाल ही ना हो। सिर्फ सरगोदा ज़िले में 150 से ज़ायद मगवी लड़कियों को बाजियाब कराया गया। 21 को तो कहबा खानों से बरामद किया गया। पुलिस ने ऑपरेशन भी अदालती हुक्म पर किया, खुद नहीं। इस्लामाबाद से जुल्करनान इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सोबिया बुतुल अगवा केस की समाअत के दौरान बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। डीपीओ सरगोदा ने बताया, अदालती हुक्म पर ऑपरेशन करके 151 लड़कियां बाजियाब करवा ली गई हैं, जबकि कहबा खानों से बाजियाब होने वाली 21 लड़कियां इसके अलावा हैं। अदालत का इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों के अगवा पर सख्त तशवीश का इजहार। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क किए कि इतने छोटे से इलाके से 151 लड़कियां बाजियाब हुई, ये पुलिस की नाअहली और नाकामी नहीं तो और क्या है। दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाकर ने पूछा, जो लड़कियां बरामद हुई इनकी अगवा की FIR दर्ज हुई थी? जवाब मिला, सबके मुकदमात दर्ज थे जो 2018 से 2021 के दरमियान रिपोर्ट हुए। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, यह ज्यादती है कि FIR के बावजूद इतनी सुस्ती बरती गई। जिन थानों के मुकदमात थे इनके SHOs को भी नोटिस होना चाहिए थे। IG पंजाब को पूरे सूबे में मगवी लड़कियों की बाजियाबी के लिए इकदामात का हुक्म दे दिया। कहा, सोबिया बतूल को भी तलाश किया जाए। डीपीओ सरगोदा ने अदालत को बताया कि बाजियाब लड़कियों में से कुछ ने निकाह नामे भी दिखाए हैं, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, निकाह नामे तो बन भी जाते हैं। अदालत को बताया गया कि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 16 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। एक गिरफ्तार मुल्जिम की दरखास्त जमानत वापस लिए जाने की बुनियाद पर अदालत ने खारिज कर दी। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। जुल्करनान इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सिंध सरकार के निराले काम बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुबैना करप्शन और तालिबात की मुबैना खुदकुशी के मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी का रुकन मुबैना हिरासानी के इल्ज़ामात का सामना करने वाले को बना दिया गया। माजी में वाइस चांसलर कायदे अवाम यूनिवर्सिटी पर क्या इल्ज़ामात लगे, जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की अनोखी कमेटी, निराली तफ्तीश। बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुबैना करप्शन, तालिबात की मुबैना खुदकुशी के लिए वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई। कमेटी में एक ऐसे शख्स को भी रुकन बनाया गया जिस पर खुद हरासानी के इल्ज़ामात लग चुके हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सलीम रजा समूह के खिलाफ 1 दर्जन से ज़ायद केस अदालतों में हैं। डॉक्टर सलीम समूह के दौर की ऑडिट रिपोर्ट में 51 करोड़ रुपए की मुबैना बेज़ाब्तिगियों का भी इल्ज़ाम है। जराए कहते हैं सलीम समूह के खिलाफ एंटी करप्शन में भी इंक्वायरी जारी है। सिंध हुकूमत के मुतल्लिका हुक्काम का कहना है कि प्रोफेसर सलीम समूह के खिलाफ मुबैना हरासानी का केस बहुत कमज़ोर था जो ख़त्म हो चुका। अदालतों में चलने वाले मुकदमात में भी दलाइल कमज़ोर हैं। सलीम समूह के दौर की ऑडिट रिपोर्ट पर छानबीन होना बाकी है। मुतल्लिका हुक्काम का कहना है कि उम्मीद है सलीम समूह तहकीकाती कमेटी में गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब समा के राब्ते के बावजूद डॉक्टर सलीम समूह ने अपने खिलाफ इंक्वायरी पर मौक़िफ़ नहीं दिया। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस से भी कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़ाती किरदार कुशी की मुहिम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक हुआ है। किरदार कुशी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला भी हुआ है। पाकिस्तान और बरतानिया में बैक वक्त कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। वज़ीर आज़म ने कानूनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी, ज़ाती किरदार कुशी की मुहिम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। किरदार कुशी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।